Introduce yourself without your name. Sir, I have done my engineering from in electronics and communication from SRM University, Chennai. I have completed my class 12 from St. Michael's High School, Patna, and I have completed my class 10 from Kendra Vidyalaya number 3, Bhatinda, Punjab. I belongs to Katihar district, Bihar. I love to spend my quality time with children at orphanage. What's your optional? Sir, I chose mathematics as an option, sir. Mathematics. Yes, sir. Okay. Uh, you have done graduation from ECE. Yes, sir. Hmm? Yes, sir. Now you want to join in civil service. What is Yes, the sir. uses of ECE in administration? Sir, in my opinion, sir, now we are in a new age governance, and I think the intervention of new technologies such as information and communication technologies are very well needed in civil services and public services, sir. So I think my knowledge in electronics and communication will help in implementing of policies in a better way, such as for schemes like Digital India program, Skill India program, and there are also many interventions of information technology in agriculture sector, sir. So I think it will be beneficial in this way. That means you want to say that your ECE degree is instrumental in e-governance. Yes, sir. Sure, sir. It Yes. will help us to reap understand the concept in a better way and implement it, sir. What is 4E in e-governance? Sorry, sir, I am not aware of this, sir. Sure. What is the function and methods of inverter? Sir, inverter. Sorry, sir. Right now, I am unable to recall it, sir. Okay. What is the uses of mathematics in how it help in administration? So, mathematics basically gives us an analyzing and interpretational power. So, in this way, it will help us to implement policies like doing cost and cost benefit analysis. And then, sir, in recent times also we have seen examples like mathematicians are helping government worldwide in plotting the corona curve, and then government is trying to deflate that curve. And in this way, sir, it will help. Hmm. Give me some example where you use mathematics in daily life, except calculation or adding tagging. Sir, sorry, sir, I am not getting your question, sir. Uh, what is the use of mathematics in daily life? Sir, sir, mathematics is used in matlab every aspect of life, that is uh, while we are in household works also, sir. While we are calculating, we are preparing budget of our households according to These, our finance. these type of budgeting and accounting and subtracting and adding. Other uses of mathematics. Yes, sir. In productional processes. Likewise, what is the uses of calculus in daily life? Say it is. Sorry, sir, I am unable to recall. I am not. What is exterior angle in polygon? So exterior angle in a polygon is the angle that is uh, made that is out. I mean, sir, are you asking the value or the definition, sir? नहीं.
what is the what is the exterior angle in polygon? हाँ, उसको उसके बारे में बताना है आपको। सर जो पॉलीगन का आउटर एंगल है, जो एजेस के जो आउटर एंगल्स बनते हैं उसको आउट साइड्स के आउटर एंगल जो बनते हैं उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, और इनसाइड टुवर्ड्स द सेंटर जो बनते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। Give an example where you use linear equation in daily life. Sir, in production angle, sir, we can use it like transportation problem. We are using for minimizing our cost from firms to different products and all, sir. What is solid geometry? Sorry, sir. What is solid geometry? Sir, an study of three-dimensional figures is solid geometry, sir. Three-dimensional figure is solid geometry. Are you sure? Sorry, sir, I am not getting the right definition. Leelavati, the book, is known for which field of mathematics? Sorry, sir, I do not know, sir. Vasisth Narayan Singh, you heard about him? Yes, sir. What is the contribution of Vasisth Narayan Singh in mathematics? Sir, he was a graduate in mathematics. He wrote many papers about cyclic vectors in during his graduation period, and he also taught mathematics in many universities. Focus point of Vasisth Narayan Singh. In which field of mathematics he focused? सर साइक्लिकल वेक्टर्स के ऊपर उन्होंने कुछ थीसिस लिखी थी। Other than that? सर अदर देन नहीं पता सर। Shakuntala Devi, you heard about? Yes, sir. Yes. What is the contribution of Shakuntala Devi in mathematics? Sir, she is known as the mental calculator. She got Guinness Book of World Record for calculating 13 into 13 digit number in 28 seconds, sir. Which is the first book of India of mathematics? Sir, surely I do not know, but sir, if you tell me, I can guess, sir. Go on. Sir, Aryabhatyam, written by Aryabhatta, sir. I don't think so. It's the Shulva Sutra. Yes, sir, it was written in Rigvedic time. Thank you, sir. What is line, point, plane, and solid? Sir, point is a fundamental one-dimensional figure, and with 2 points joining, we can make a line. And sir, plane is sorry, sir, I am not getting right now, sir. Bablu ji. आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा, एंगल जो बनता है तो वो लाइन से बनता है या लाइन सेगमेंट से बनता है या रे से बनता है? किससे बनता है? सर, रे से बनता है। रे से बनता है। ओके। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? सर, मैं अपना क्वालिटी टाइम ऑर्फनेज चिल्ड्रंस के साथ स्पेंड करना पसंद करता हूँ, और सर मैं यूजुअली उनके साथ कहीं विजिट करता हूँ। किसी ऑर्फनेज से जुड़े हैं आप? सर, जुड़ा नहीं हूँ, बट मैं अलग-अलग कुछ ऑर्फनेजेस हैं सर, जहाँ पे मैं मतलब रेगुलरली विजिट करता हूँ टाइम टू टाइम, जब भी मुझे टाइम मिलता है। बट सर, ऐसा कोई मेंबरशिप नहीं है सर। तो कुछ ऑर्फनेज का नाम बताइए जहाँ आप रेगुलर जाया करते हैं। सर, मैं अपने कॉलेज डेज में जनरली गुड लाइफ सेंटर, जो कि चेन्नई तांबरम में सिचुएटेड है, वहाँ जाता था।
सर अभी मैं अपने प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं कभी कभी सर उम्मीद आशा भवन पे जाता हूँ और वहाँ पे कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता तो जाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? आप उससे मोटिवेट होते हैं या आपके मन में भावना है कि आने वाले समय में मैं इनकी हेल्प करूंगा? क्या उद्देश्य होता है आपका? हूँ सर। मैं वहाँ जाके मोटिवेट भी होता हूँ सर, और उनसे कुछ सीखता भी हूँ सर। और टाइम टू टाइम मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्पेयर टाइम है सर, वो किसी प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ हो। तो मैं वहाँ जाके सर बच्चों के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कभी प्लान कर लेता हूँ। तो सर कभी उनके स्टडीज़ में मदद कर देता हूँ। जैसे कॉलेज डेज में सर मेरे पास वीकेंड्स में टाइम होता था, तो सर मैं वहाँ जाके उनको रेगुलरली, उनको हर वीकेंड पे जाके सर उनका जो एक वीक का जो पढ़ाई स्कूल में उन्होंने किया है गवर्नमेंट स्कूल में, उनको सर जाके मैं अगेन वहाँ पे उसको रिवाइज कराता था, उनको थोड़ा सा एजुकेशन विद फन के द्वारा कराने की कोशिश करता था मैं। इसके दौरान अपने कुछ फ्रेंड्स को चीजें भी। जो आपने वहां जाके जो कुछ सीखी है, वैसी कुछ चीजें बताइए जो आपने सीखी वहां जाके। आपने कहा कि सर मैं कुछ सीखता भी हूँ वहाँ। सर एक तो ऑर्फनेजेस में सर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं होते, तो वो उनका एक वो होता है कि उनको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सर उसके बावजूद सर लाइफ में एक्सटर्नलिटीज के बावजूद भी खुश रहना सीखता हूँ। खुश रहना वो सिखाते हैं, कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और इसके अलावा सर एक इवेंट मैंने किया था, तो उसमें सर हमने कुछ पोएम कॉम्पिटिशन्स लिखा था। तो उससे सर मैंने उसमें एक बच्चे की जो पोएम्स थी सर, एक माँ के ऊपर बहुत अच्छी पोएम लिखी थी उसने। तो सर उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि सर कितना मतलब वो मिस करता है तब भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरह से उनकी मदद कीजिएगा? सर पहले तो मैं जो आप उनके कर रहे हैं लिए। उसको छोड़ के। ये हाँ, सर। जो आप अभी कर रहे हैं उसको छोड़ के आप और कैसे मदद कर सकते हैं उनकी? ये सर। सर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको जो एजुकेशन है सर उनमें कुछ और इंटरवीन करना चाहूँगा। जैसे कि सर उनको थोड़ा सा सर वो लैग कर जाते हैं मॉडर्न एजुकेशन में, हालांकि कुछ बच्चे वहाँ पे भी निकलते हैं सर, बट कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं उनको। जैसे कि आजकल जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में और अलग, तो उनको सर ये नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहूँगा कि सर एजुकेशन एटलीस्ट उनको सर क्वालिटी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कर सकूं सर मैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन किस तरह से ऑर्फनेज की मदद कर सकता है? ये सर। सर सबसे पहले तो सर मैंने एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन सर एजुकेशन को प्रोवाइड करने में डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से एक इफेक्टिव और इकोनॉमिक तरीका है सर उनको प्रोवाइड करने का। अगर हम इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें तो सर हम हमें मतलब जैसे कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि हम अपना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते क्योंकि हमारा वर्किंग प्रोफेशन भी होता है, तो सर उस माध्यम से हम इसमें मदद कर सकते हैं। तो आपने कभी कोशिश की आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन को अप्लाई करने की? ये सर एक बार मैंने सर जो 11th 12th के वहाँ पे बच्चे थे सर, सो तभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो सर मैंने दोस्तों के साथ उनका फाइनल एग्जाम्स आ चुका था सर पास में, और उनका जो बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो सर हमने प्लान अच्छा, बनाया आपको कि हम। राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था है जो ऑर्फनेज के लिए काम करती है अपने इंडिया में? सॉरी सर मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था? सर एक सर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट क्राई एक इंस्टीट्यूट है जो बच्चों के लिए काम करती है, केयर फॉर यू करके शायद। क्या फुल फॉर्म है क्राई का? केयर फॉर यू सर, आई एम नॉट श्योर बट। नो, चाइल्ड रिलीफ एंड यू। ओके ये सर। चाइल्ड सॉरी सर। रिलीफ एंड यू, ये उसका फुल फॉर्म है। अच्छा, आपने यहाँ के एक थे व्यक्ति अभी भी है, उनको नोबेल प्राइज मिला था और वो बच्चों के लिए ही काम करते हैं। कौन थे? कैलाश श्री कैलाश सत्यार्थी। और कौन सी संस्था है उनकी? सॉरी सर मुझे नहीं पता। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया हुआ है, बचपन बचाओ आंदोलन, है ना? इसी के नाम से उनकी संस्था चलती है।
ये सर बचपन बचाओ। अच्छा, आपकी प्रायोरिटी क्या है बीपीएससी में? पदों की प्राथमिकता क्या है? सर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी डीवाईएसपी है, सेकंड प्रायोरिटी एसडीएम, एंड देन थर्ड प्रायोरिटी सर बिहार फाइनेंस सर्विस। इंजीनियरिंग फील्ड से आप डायरेक्ट एकदम आना चाह रहे हैं पुलिस की फील्ड में, क्या इसके कोई कुछ रीजन है, विशेष रीजन? सर कोई विशेष रीजन नहीं है, बट सर बचपन से सर मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो सर बचपन से मैंने उनको एक वेल ड्रेस्ड और वेल कमिटेड पर्सनालिटी के रूप में देखा है और उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। तो सर एक ड्रेस में रहना और डिसिप्लिन मेंटेन करना सर मुझे भी पसंद है। और हालांकि सर सिविल सेवा में आने का डिसीजन आपने बाद में लिया या पहले से था आपका डिसीजन? सर सिविल सर्विसेज में आने का डिसीजन मैंने कॉलेज डेज में लिया था, और डीवाईएसपी चूज करने का डिसीजन सर मुझे हमेशा पसंद था कि मैं कोई ड्रेस में काम करूं सर। और नहीं, सर मैं ये इस जानना चाहता हूँ कि आपका ये डिसीजन एकेडमिक समय से ही था या बाद में आपने लिया? सर ये डिसीजन सिविल एकेडमिक सेवा में समय, ये सर एकेडमिक टाइम से ही था, जब मैं इंजीनियरिंग में आया था, इंजीनियरिंग शुरू किया था सर तभी से। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके फादर एयरफोर्स में थे, जी एक वेल सेटल्ड फैमिली थी आपकी, जी सर। तो आपने अगर आप शुरू से ही आपके आने की इच्छा थी सिविल सेवा में, तो वो कौन से कारण थे जो आपको इंजीनियरिंग में ले गए और सिविल सेवा में आने से रोक रहे थे? सर पहले तो सर मेरा ये मानना है कि सर इंजीनियरिंग एक आइसोलेटेड थिंग नहीं है सर। इंजीनियरिंग एक डिग्री है जो कि सर एक बीटेक डिग्री जो कि ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है सर सिविल सर्विसेज में आने के लिए। और दूसरा सर मोटिव ये है कि सर मैं बचपन से एक टेक्नोलॉजी, मतलब रियल टाइम एप्लीकेशन जो भी मैं पढ़ता हूँ उसका क्या रियल टाइम एप्लीकेशन है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के तरफ थोड़ा टिल्टेड था। तो सर इससे मुझे आपकी टेक्नोलॉजी को लॉजिक भी। आपकी आपकी लॉजिक आपकी बातों को सपोर्ट नहीं करती है। अभी आपने कहा कि सर मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद है, और मेरे फादर एयरफोर्स में थे, मैं उन्हें देखता था वेल ड्रेस्ड और डिसिप्लिन, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, इससे मैं इंस्पायर्ड होता था। और अभी आपने कहा कि सर इंजीनियरिंग, तो ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सर बट सर जो मेरा डीवाईएसपी चुनने का रीजन है ओवर द एसडीएम सर, उसका रीजन ये था सर। और चलिए ठीक है दीपक जी, आपका अच्छा रहा इंटरव्यू, और अच्छा, पहला इंटरव्यू था अभी आपका जो ये। आप बैठे हुए हैं, जी सर। इससे मैथमेटिक्स क्या है, इसमें पर मदद कर रहा है आपको? सर मैं आपको सुन नहीं पा रहा सर। आप जो बैठे हुए हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, जी सर। तो वहां पर मैथमेटिक्स क्या नजर आ रहा है आपको? मैथमेटिक्स किस तरह हेल्प कर रहा है सर? हाँ, सर अभी मुझे इसका कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी सर। अच्छा, अगर आप प्रशासक बनते हैं, है ना, सर तो कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल बताइए जहां पर उस समस्या को आप मैथमेटिक्स के द्वारा सॉल्व करिएगा। सर जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो मतलब जैसे अलग अलग स्कीम्स हैं, मनरेगा एंड अच्छा, पीडीएस स्कीम सर, वहाँ पे मैं सॉरी सर मैं एग्जैक्टली नहीं इसको डिफाइन कर पा रहा हूँ सर। हाँ सर, what's your name? हेलो। नवनीत कुमार। Yes, हाँ नवीन जी। नवनीत कुमार सर। हाँ तो नवीन कुमार जी, आप ये पहले बताएं कि आपको कैसा फील हुआ